بادشاہ کے اگل بگل وزیر ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سلطنت قائم ہے اور رعایا اپنی حاجتیں لے کر آ سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا دربار مدینے میں آج بھی اس بات کی علامت بنا ہوا ہے۔ اے سنیوں، اے مسلمانوں، آؤ حاجتیں لے کر، اس لیے کہ بادشاہ اب بھی کرسی شہنشاہت پر بیٹھا ہے اور بغل میں ابو بکر و عمر وزیر بن کر کے آج بھی تشریف فرما ہے۔ مسلمان کسی بزدل قوم کا نام نہیں ہے، مسلمان اس قوم کا نام ہے جس کو اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ الحمدللہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی کی قلت، راجستھان میں ویسے ہی صحرائی زمین میں دور دور تک پانی کی قلت، لیکن اس کے باوجود جب نام مصطفیٰ کی بات آئے تو یہ اپنا کلیجہ چاک کر دیتا ہے، یہ اپنا سینہ پیش کر دیتا ہے، اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تمہارا یہی جذبہ اوروں کو کھا جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کو چندھیا کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، دعا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی کرنا کہ رب ذوالجلال جب تک سانس باقی رہے ہمیں زندہ جذبات کے ساتھ رکھ، اور مرے ہوئے مردہ لاشوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا نہ کر۔ میرے عزیزو، بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی آج میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ایک دو نہیں، ہزاروں عاشقوں نے قلم بھی اٹھایا اور اپنی کتابیں بھی لکھی، ہزاروں نے اپنی زبانیں بھی کھولیں اور میرے مصطفیٰ کی شان میں جو کچھ ہوا بیان کرتے رہے، لیکن اخیر میں سب نے یہ کہا لا يمکن الثناء کما کان حقہ، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا ان کی صحیح معنوں میں کوئی تعریف کر ہی نہیں سکے گا، کما حق کہو ان کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہاں، حاصل کلام یہ ہے خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے۔ اور اسی کو بریلی کے امام نے یوں کہا تھا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی اوقات، میں کہتا ہوں یہ ایکو بند کر دیں، صرف سادی آواز رہے، بس ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن عظیم میں جو باتیں ارشاد فرمائی، آپ کو پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ آج جس انداز سے آپ مجھے پہچان رہے ہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف کھڑا ہوا، آواز بلند کی، میرے عزیزو یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں، یہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات ہیں، ہر ایک سنی مسلمان کے دل کا درد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جب گستاخیاں ہوئیں ان کے زمانے میں تو صحابہ نے جواب تو دیا ہی ہے، تابعین نے جواب تو دیا ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کرتا تو سب سے پہلے جواب خود رب ذوالجلال عطا فرماتا۔ تو ناموس رسالت کا دفاع کرنا یہ سنت الہی ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ آپ کو مثالیں میں بتاؤں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سارے لوگوں کو جمع کیا اور اس میں سارے کفار و مشرکین بھی تھے، دعوت پیش کی اسلام کی اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا۔ جب پیغام حق پہنچا تو اس مجمع میں ایک ظالم کافر ابو لہب اٹھ کر کے کہتا ہے تبن لک یا محمد۔ تبن کا مطلب یہ بددعا کے طور پر اور گالی کے طور پر استعمال کرنے والا لفظ، اور اس نے یہ کہا محمد تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں معاذ اللہ رب العالمین، یا اس طرح کا جملہ اس نے توہین کا کہا۔ الہذا جماعت، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ یہاں پر لفظ کو آپ توجہ دیں، اس نے کیا کہا تھا؟ تبن، برا ہو تمہارا، خرابی ہو تمہاری، اس طرح کا جملہ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دل اقدس پر ملال ہوا، کبیدہ خاطر ہوئے۔ میرے عزیزو، یہ پہلی مرتبہ کسی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی، 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، لیکن حق بات کا اعلان جس وقت میرے آقا نے فرمایا، سب سے پہلے آپ کو ابو لہب ظالم نے گالی دی یا برا کہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن میرے عزیز جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہو تو سارے لوگوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ رحمان خود آیت اتارتا ہے اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب،
मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, पूरी सूरह अबू लहब की मजम्मत में नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो जाएं और उसका माल उसे कोई नफा नहीं दे सकेगा। और उस पर जो लानत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाई। दोस्तों मेरे अजीजों, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक बार तौहीन रिसालत किया अबू लहब, लेकिन अल्लाह ने उसकी मजम्मत में कुरान की आयत ऐसी उतारी कि करोड़ों मुसलमान सुबह क़यामत तक अब अबू लहब की जात पर लानत भेजते रहेंगे। कुरान पाक के जरिए से अल्लाह ताला ने नामुस रिसालत का दिफा फरमाया है। मेरे आका की इज्जत की जब बात आए, कुरान की आयत उतरती है। आपको मैं बताऊं, एक मरतबा ऐसा हुआ कि रब्बे जुल जलाल की तरफ से जो आयतें उतरती थी, कभी दिन में 2 मरतबा, कभी 3 मरतबा जिब्राइल आते थे आयतें लेकर, कभी रोज एक आयत लेकर आते, कभी कुछ आयतें लेकर। एक मौका ऐसा आया कि तकरीबन 15 दिन तक कोई वही नहीं उतरी, कोई आयत नहीं आई। और ये बात मक्का में मशहूर हो गई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो वही उतरती है, कुरान की आयतें आती हैं, वो जिब्राइल लेकर नहीं आ रहे हैं। अब मजाक उड़ाने वालों का एक टोला जमा हुआ, मुशरिकीन कुफार का एक टोला, ये बकवास करना शुरू किया, वद्दअ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, वद्दअ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, जिसका मतलब ये होता है मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को अब छोड़ दिया है, मोहम्मद के रब ने अब मोहम्मद को छोड़ दिया। ये जब बातें गर्दिश करने लगी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की समाज से भी ये बातें टकराई। लोगों ने कहा कुफार और मुशरिकीन का एक टोला यूं कह रहा है, आपका रब आपको छोड़ दिया, अब आयतें नहीं आती हैं, अब वही नहीं उतरती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या गमगीन ही हुए थे, अभी अपनी आंखें नीचे ही किए थे कि जिब्राइल पूरी सूरह लेकर नाजिल हुए। और आयतें क्या थी सुनो मेरे अजीजों, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा खला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आयतें आपको पूरी पढ़ने से पहले मैं मुख्तसर ये बता दूं, अब रब तबारक व तआला हुजूर की तारीफ में पूरी सूरत नाजिल करता है। इरशाद फरमाया जाता है, आपके चेहरे वद्दुहा की कसम, आपके चमकने वाले चेहरे की कसम, आपकी चमकती हुई काली जुल्फों की कसम, मा वद्दअक रब्बुका वमा कला, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना कुछ कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ए महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कई दर्जे बेहतर है। पूरी सूरह अल्लाह ने नाजिल फरमाई। मुशरिकीन ने जब भी भौंकना शुरू किया मेरे आका की शान में, दिफा के लिए आयतें नाजिल हुई हैं, रब्बे जुल जलाल की तरफ से बात आई है। मेरे अजीजों, यही तो शान मुस्तफ़ा है। हम और आप क्या दिफा कर सकते हैं? कुरान में खुद रब्बे जुल जलाल ने मेरे नबी की इज्जत का दिफा किया है। और आगे मैं आपको बताऊं, इतनी नहीं कई आयतें आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग जब सवाल करने आते और ऐसे ऐसे सवाल करते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस तरह के सवालात किए जाते जो आम इंसान के लिए ना हो, और मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन खुदाई के दर्जे पर पहुंचाने की बातें की जाती, तब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ए महबूब उनसे कह देना मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मगर ये कि मुझे अल्लाह की तरफ से वही आती है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब बात यहाँ भी आती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद अमजाद, हर मुसलमान को ये बात मालूम होनी चाहिए मेरे आका की औलाद कितनी थी, उनकी अज़वाज मुतहरात कितनी थी, हुजूर ने कितनी शादियां फरमाई, सहाबा की तादाद क्या थी, अशरे मुबशरा कितने थे, कौन थे, ये सब बातें हर मुसलमान को मालूम हो। इसलिए कि वो अगर अपने नबी की सीरत नहीं जानता तो फिर किसकी सीरत जानेगा? कौन है जो तुम्हारा आइडियल है, कौन है तुम्हारा नमूना अमल? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हुए और 4 बेटियां हुई। बेटों में तीनों बेटे इब्तिदाई जिंदगी में इंतकाल फरमा गए, यहां तक कि 6 महीने से ज्यादा कोई भी बेटे आपके बाहयात न रहे। हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम, आखिर में हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ जब उनकी उम्र 6 महीने से भी कम की थी। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में कोई बाहयात ना रहे, बेटियां जिंदा रहीं। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमईन, ये चारों बेटियां बाहयात थी। अब सुनिए, जब हुजूर के 3 बेटों का इंतकाल हुआ, जाहिलाना रस्म रिवाज अगर हमारे यहाँ पनप रही है तो वो भी समझ लें। बाज लोग ये समझते हैं कि बेटा ना हो तो नस्ल कैसे चलेगी, बेटा ना हो तो विरासत कैसे तकसीम होगी, वारिस कौन बनेगा। ये जहालत की बातें छोड़ दो, यही मक्का के काफिरों ने बातें बनाई। और सबसे बड़ी बात, अबू लहब ने आकर के ये कहा कि मोहम्मद अक्ता है,
अबतर है। अबतर का मतलब हुआ जिसकी नस्ल कट गई, जिसकी नस्ल खत्म हो गई। अबतर लफ्ज, अक्ता लफ्ज, उसने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने के लिए, तौहीन रिसालत के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया कि आप बेटे तो सब खत्म हो गए, अब कोई बेटा नहीं, नस्ल कहां से चलेगी, नस्ल कट गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कोई जालिम इस तरह की तानो तशनी करता है, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीरा खातिर हुए तो रब्बे जुल जलाल ने आपको कभी भी मलूल नहीं छोड़ा, और ना ही रब्बे जुल जलाल ने आपको कबीरा खातिर और गमगीन छोड़ा, बल्कि आपके दिल की तसल्ली के लिए रब्बे जुल जलाल ने एक से एक इनामात की बारिशें फरमाई। अल्लाह ताला ने फौरन पूरी सूरह उतारी। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जालिम आपको कह रहे हैं नस्ल कटी है, आप अक्ता हैं, अबतर हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने तो आपको कौसर अता किया है, हमने आपको कौसर अता किया है, आप अपने रब की इबादत करें, कुर्बानी करें। आपकी नस्ल कटी नहीं, आपके दुश्मन की नस्ल कटी हुई है। ये रब्बे जुल जलाल की तरफ से ऐलान हुआ, इन्न शानिअका, ऐ महबूब बेशक आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। पता ये चला गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ जवाब देना और उन्हें बात करना ये सुन्नत इलाहिया है, ये रब्बे जुल जलाल का कानून है। अल्लाह ने जो फरमा दिया वो हक है। अब सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाला, गुस्ताखी करने वाला, जिसने कहा था नस्ल कटी हुई, ढूंढ करके निकालो पूरी दुनिया भर में अबू लहब की औलाद कहां है, अबू लहब के बेटे कहां रहते हैं, उसकी विरासत किन में तकसीम हुई, आप ढूंढ करके निकालेंगे, कहीं आपको पता नहीं चलेगा। उसकी औलाद क्या, उसके पोते पोते और नवासों तक भी औलाद नस्ल नहीं चल सकी, औलाद ही खत्म हो गई और उसका नामो निशान भी मिट गया। अबू लहब की जो मौत हुई इस हालत में हुई कि उसको सख्त तरीन बीमारी लाहिक हुई, यहां तक कि उसको एक गड्ढे में डाल करके उसके ही बच्चों ने पत्थर उस पर डाले थे, इतने पत्थर मारे गए थे कि उसका जिस्म पूरा पत्थरों से लहूलुहान था, वो खुद मिटा, उसकी औलाद नहीं रही। लेकिन आओ, मेरे रब्बे जुल जलाल ने मेरे मुस्तफ़ा की जो शान बयान की, इन्ना आतैना कल कौसर, उस आयत की तफसीर के एतबार से आज हिंदुस्तान नहीं, जयपुर राजस्थान नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, रसूलुल्लाह की आलो औलाद की खुशबू तुम्हें जरूर नजर आएगी। हर जगह सादात मौजूद हैं, सैयद हजरात मौजूद हैं। ये किसकी नस्ल है? ये फातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल आज पूरी दुनिया में है, जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद फरमाया है। अजीज़ान गिरामी, हुजूर को कहने वाले कि नस्ल कटी है, वो खुद कट गए, मगर मेरे मुस्तफ़ा की नस्ल आज पूरी दुनिया में जिस तरह महफूज है, कायनात में किसी की नस्ल इस तरह से महफूज नहीं। एक बात याद रखें, हुजूर की जो नस्ल है आज, इस तरह की पूरी दुनिया में किसी और की नस्ल महफूज नहीं। सादात के शजरे महफूज हैं, इनके नसब महफूज हैं, और इनकी आल औलाद, इनके खानदान, इनके तमाम हसब और नसब आज भी महफूज हैं। जाओ सादात की खानकाहों में, वो सारे शजरे और तारीख लेकर बैठे हैं। मेरे अजीजों, इसी को तो कहा गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद आज पूरी कायनात में है, और यही शान मुस्तफ़ा है जिसको आला हज़रत ने यूं कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अज़ीज़ान गिरामी, ये शान मुस्तफ़ा है। जब कभी किसी ने हुजूर की ज़ात पर उंगली उठाई तो जवाब कहां से आया? खुद खुदाए कदीर व जब्बार की तरफ से आया। अल्लाह ने कभी सूरह वद्दुहा उतारी, कभी सूरह लहब उतारी, कभी सूरह कौसर उतारी। अब कौसर का माना मैं बयान करके हुजूर की शान पाक के चंद आपके सामने झलकियां रख दूं। कौसर क्या चीज है? कौसर किसको कहते हैं? बाज लोग यही समझते हैं कौसर एक नाम है या फिर हौज़े कौसर है। कौसर की हजारों तारीफें हुई और इसकी कई तफासीर हैं, कई इसके मफहूमात भी मुफस्सिरीन ने बयान की, लेकिन जो हकीकत ज्यादा राजा है वो मैं बताता हूं। कौसर अरबी का लफ्ज है और अरबी में बलागत एक चीज है, ये सारे लोगों के समझ में नहीं आती। अरबी एक ऐसा लिटरेचर है कि एक एक लफ्ज आता है 70-70 मानों के लिए। कभी कभार एक एक ऐसे वर्ड हैं जो 1000 माने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और अरबी में वुसात बहुत है, एक लफ्ज बोलकर कई माने मुराद लिए जा सकते हैं। अब कौसर क्या चीज है, अब मैं आपको बताता हूं। अरबी में एक लफ्ज है कसीर। कसीर ज्यादा को कहते हैं, कलील का अपोजिट क्या है? कसीर है। जैसे दिन का अपोजिट रात है, सफेद का अपोजिट ब्लैक है, काला है।
یہ اپوزٹ چیزوں کو میں بتا رہا ہوں. قلیل اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑی ہے. تھوڑی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا کر کے جانا چاہتا ہوں. کثیر قلیل کا اپوزٹ ہوتا ہے. اچھا اگر کثیر سے بھی زیادہ بولنا ہے، مثال کے طور پر 10 کے اپوزٹ میں 100 لے کر کیا گئے، ایک طرف 10 روپے ہے، یہ قلیل ہے، 100 روپے کیا ہے؟ کثیر ہے. لیکن ہم کو اور بھی زیادہ بولنا ہے تو عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اکثر. کثیر سے بھی زیادہ ہو تو اکثر ہے. اکثر کتنا ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں بیان کی گئی. وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے 10 کے مقابل میں، 10 روپے کے مقابل میں لاکھ بھی آ سکتا ہے، وہ اکثر ہو گیا. اب اگر اکثر سے بھی زیادہ بولنا ہے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر کہا جاتا ہے. ایک ہے کثیر، اس سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر. یہ 3 جملے تو یاد رکھو مسلمانوں، 3 باتیں تو یاد رکھو: کثیر، اکثر اور کوثر. اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناکل کوثر. اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کتنا ہے کوثر؟ کیسے اندازہ کر سکیں گے؟ مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا، کتنا دیا، اسی سے آپ اندازہ کر لیں. یہ پوری جو کائنات ہے، یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ پوری روئے زمین، اس پر موجود پورے سمندر، اس پر موجود تمام درخت، اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور، اس پر موجود تمام جنات، بلکہ فرشتے، ملائکہ، یہ پوری جو دنیا ہے، پوری دنیا، اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے. کیڑے مکوڑے الگ، چرند و پرند الگ، جانور الگ، بہائم الگ، سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ، جنات کی بے انتہا تعداد الگ، یاجوج ماجوج کی کثرت الگ، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ، ملائکہ، فرشتے، یہ تمام مخلوقات الگ. ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے. کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے. اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے، ہم بھی قلیل ہیں. پوری روئے زمین آ گئی، یہ بھی قلیل ہے. یہ سارے آسمان آ گئے، یہ بھی قلیل ہے. یہ ساری کائنات کے ہر ذرے اس میں آ گئے، یہ قلیل ہے. اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے. کیا ہے؟ قلیل ہے. اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے، اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے، اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا، اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا، اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا. اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ شان مصطفیٰ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہم نے کوثر دیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری. اے رسول پاک آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی دیا ہے، اور حسن یوسف ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی دی گئی. اور پھر آخر میں شاعر کہتا ہے وہ تمام خوبیاں جو انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے عطا کی. اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت میں چند مثالیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ کا خطاب دیا، وہ اللہ کے صفی ہیں. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کثرت بکا میں مشہور تھے، یعنی آپ کثرت سے رویا کرتے تھے. کافی سالوں تک آپ نے گریہ بزاری کی، اور یہ کثرت بکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی. حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ کے خطاب سے سرفراز ہوئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجابت آپ کو دی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نجی بھی بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کہا، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے خلیل ہیں. لیکن میرے عزیزو
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا. جو ان نبیوں کو صفات دی گئی وہ تمام تر صفات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں عطا کی گئی. وہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو دی وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اب چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ہے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم. ان کے واقعات اکثر سنائے جاتے ہیں اور سنتے بھی ہیں آپ. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک بات میں عرض کرتا ہوں. آپ کوہ طور پر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے رب ذوالجلال میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, میں تجھے کھلے آنکھوں دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں ہے ربی ارینی, اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے. اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لن ترانی, اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا. بار بار موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو رب تعالیٰ نے پھر کس انداز میں بلایا فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اے موسیٰ اپنی چپلیں اتار دیں, اپنے نالین اتار دیں اور کوہ طور پر آئیں. کوہ طور مصر کی وادی سینا میں موجود ایک پہاڑی کا نام ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چڑھتے ہیں وہاں پر حکم کیا ہوتا ہے, قریب موجود ایک دوسری پہاڑی پر ایک درخت ہے, اس درخت پر آپ دیکھتے رہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت پر دیکھتے رہے. رب تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم ہلکی تجلی اس درخت پر نازل فرمائی. اور روایات یہ بتاتی ہیں فلما تجلی ربہ, اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پر اپنی تجلی کا اظہار فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم غش کھا کر کے گر گئے اور پورا پہاڑ جل کر کے راکھ ہوا. آج بھی وہ پہاڑ جلا ہوا موجود ہے, ہم نے دیکھا ہے. اور اس درخت کا سایہ ہر پتھر پر پڑ گیا. پتھر کو 100 ٹکڑے کریں تب بھی اس درخت کا سایہ اس پتھر پر آج بھی نظر آتا ہے. یہ تھا سوئی کے ناکے کے برابر ہلکی تجلی جو رب ذوالجلال نے کوہ طور پر نازل فرمائی. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا, آپ نالین اتار کر کے آئے اور پھر بہت ہلکی تجلی دکھائی گئی. اتنا ہی دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے آنکھوں سے نہیں دیکھے, ابھی پلک جھپکتے ہوئے ہی آپ نے دیکھا تھا اور حالت یہ ہو گئی. اب سنیے, واپس موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں. جب آپ اپنی قوم کے پاس آتے ہیں فرمایا گیا اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں چلی جاتی تھی. آنکھوں میں اتنا نور تھا, اتنا جلال تھا. اور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کی تاثیر اور دور بینی کا عالم یہ تھا کہ نہایت ہی سخت ترین رات کالے اندھیرے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر دور اگر رات کے وقت کسی کالے پتھر پر کالی چیونٹی رینگ رہی ہو موسیٰ علیہ السلام اسے آسانی سے دیکھ لیا کرتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور رات کے وقت پتھر پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. یہ کس بات کا کمال تھا, کوہ طور پر جو ہلکی سی تجلی آپ نے دیکھی تھی یہ شان موسیٰ ہے. اب آؤ 26 رجب کی وہ تاریخ یاد کرو جب شب معراج ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے. کس شان سے جبرائیل کو اتارا گیا اور حکم دیا گیا اے جبرائیل جاؤ اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلووں سے لگاؤ. اور ان کی پیشانی کی ٹھنڈک پا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پھر کہا گیا یا رسول اللہ آسمانوں پر آپ کو بلایا جا رہا ہے اور رب ذوالجلال آپ کو اپنے قرب کی منزلیں عطا کرتا ہے. حضرت جبرائیل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی شان سے گئے, اس طرح سے نہیں کہ آپ کو چپل اتارنے کا حکم آیا ہو, آپ سے کہا گیا ہو کہ نالین اتاریں, بلکہ یوں حکم ہوا کہ آپ کے لیے براق سواری بھی بھیجی گئی اور پھر اس پر بٹھایا بھی گیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں پہلے لے جایا گیا, زمزم سے آپ کے سینے مبارکہ کو دھویا گیا, اس کے بعد بیت المقدس کی سرزمین پر لایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو جس وقت میرے آقا تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں صفوں میں موجود تھے. سب نے میرے آقا کا استقبال کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے مصلی امامت پر تشریف لے گئے اور انبیاء کرام کو نماز پڑھائی, امامت فرمائی. وہ جو نماز تھی وہ اللہ بہتر جانے. میرے عزیزو
नमाज के बाद हर नबी ने आपकी शान में कसीदा पढ़ा, मेरे आका की तारीफ बयान की, और यहाँ होने के बाद आसमानों का सफर किया, सातवां आसमान देखे, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, अर्श और कुर्सी, लौह कलम, जन्नत और दोज़ख सबके नजारे किए, और उसके बाद वो मकाम भी आया जहां जिब्राइल भी आगे जाने से मना करने लगे, अब मेरा मकाम नहीं है, आप जाएं मेरे मुस्तफा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामकां का भी सफर तय करते हुए रब्बे जुल जलाल की बारगाह में इतना करीब हुए कि कुरान कहता है फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, दो तीरों से भी कम का फासला रह गया था, दो हाथ से भी कम का फासला रह गया था रब्बे जुल जलाल की बारगाह में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, पूछो रसूल पाक ने किस शान से देखा, अपने माथे की आंखों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नारे तकबीर, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह को हाजिरी दी और ज़ात इलाही को देखा, इस अंदाज से देखा कि कुरान कहता मा ज़ागल बसर व मा तगा, ना आपकी पलक झपकी, ना आपने आंख बंद किया, बल्कि ज़ात इलाही को पूरे माथे की आंखों से भी देखा, और जितना देखा वो अल्लाह बेहतर जाने, मेरे मुस्तफ़ा जाने। वापस जब तशरीफ लाए, एक बार नहीं 9 मरतबा मूसा अलैहि सलाम ने वापस भेजा था। आपको वाक़या मालूम है, मैं तफसील में नहीं जा रहा, मेराज के वाक़े में जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब्बे जुल जलाल की बारगाह से वापस आए, ऐ मुसलमानों, अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो कोहे तूर पर एक हल्की तजल्ली रब्बे जुल जलाल की देखी, जो सुई के नाके से भी कम थी, और उतना देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों का हाल यह था कि वो 3 मील दूर रात के वक्त किसी पत्थर पर रेंगने वाली चूंटी को देख लिया करते थे। अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा, जिन्होंने तजल्ली नहीं, कोई सर्रा नहीं, बल्कि पूरे ज़ाते खुदाबंदी को देखा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को देख करके वापस जब मेरे आका तशरीफ लाए, अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा। क्या कोई जर्रा छुपा होगा मेरे मुस्तफा की निगाहों से? क्या कोई तिनका छुपा होगा मेरे आका की निगाहों से? उन्हीं निगाहों के बारे में इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, शान मुस्तफा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वापस भी आए। अब यहाँ लगे हाथों एक बात, मेराज का समा तो है नहीं, लेकिन है मीलाद मुस्तफ़ा। हम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं, दर हकीकत हम अपनी किस्मत को बुलंद कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, लोग जब ये वाक़या सुनते हैं कि मेरे आका हरम काबा में गए, फिर वहाँ से बैतुल मुक़द्दस गए, 1,24,000 अम्बिया की इमामत की, अक्सर अम्बिया ने उसमें हुजूर की शान में खुतबे पढ़े, पहले आसमान का सफ़र, दूसरे आसमान का सफ़र, 2 आसमानों के बीच में जो सफ़र है वो 500 साल की मसाफत का है, 500 साल की मसाफत का, 7 आसमानों का सफर, अर्श और कुर्सी, लौह कलम, जन्नत और दोज़ख, इन सब का नजारा करना, और फिर ज़ाते खुदाबंदी को देखकर वापस आना। लेकिन कमाल इस बात का है कि जब सुन्नी बयान करता है तो यूं कहता है कि बिस्तर जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। यही तो हम कहते हैं ना, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक गए भी आए भी, लेकिन वक्त कितना लगा, 1 मिनट का भी वक्त नहीं था। अब जो फलसफी है, जो अकल के घोड़े दौड़ाता है, वो कहता मियाँ ये तो आप फेंकम फाक कर रहे होंगे, ऐसी बातें उड़ा रहे होंगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतने छोटे वक्त में इतना लंबा सफर कैसे कर सकते हैं? मेरे अजीजों, पहले तो मैं इनको अकली जवाब ये दूंगा, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले भी अगर कोई ये कहता कि मैं मुंबई से जयपुर 2 घंटे में आ गया, तब भी लोग उसको बेवकूफ कहते थे, पागल कहते थे, क्योंकि प्लेन नहीं थे, हवाई जहाज का वजूद नहीं था। लेकिन आज अगर कह देंगे तो मान लिया जाता है। मेरे अजीजों, 1400 साल पहले जो मेरे मुस्तफ़ा का सफर हुआ है, वो आज तक के लोगों के अकल में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सफर दर हकीकत मौजज़ा है और नूर नूर से मिलने जा रहा है। तो यहां मसाफत किस बात की? मेरे अजीजों, अब मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं तवज्जो से सुने कि कैसे हुजूर गए भी आए भी, और कायनात का वक्त इतना ही रहा। कायनात में इतना ही वक्त था, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की जंजीर भी हिल रही थी, जिससे आप वजू फरमा कर गए थे उससे कतरे भी अभी टपक रहे थे।
इतने शॉर्ट पीरियड में इतना लंबा सफर कैसे मुमकिन? किसी दानिश्वर ने बड़े अच्छे अंदाज में एक मिसाल से समझाया था। आपको मैं भी बता देता हूं। अगर आपके हाथ में कोई वॉल क्लॉक हो, घड़ी हो, आप देखें घड़ी 2 सुइयों से चलती रहती है, कभी उसमें 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। आप एक काम करना, जब घड़ी में 12 बज जाए तो उसको उठा लेना दीवार से और उसके पीछे से उसके सेल निकाल दें, उसकी बैटरी निकाल दें, थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें। घंटा भर, 2 घंटे भर, 3 घंटे भर, 4 घंटे भर, 6 घंटे तक आप उस सेल को, बैटरी को अपने पास रखना। 6 घंटे के बाद उस घड़ी में वापस सेल डाल दीजिए, वापस बैटरी लगा दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, 12 बजे थे जब घड़ी में, तब आपने सेल निकाल लिया था, बैटरी निकाल लिया था। अब जब 6 घंटे के बाद बैटरी दोबारा डालेंगे, मुझे बताओ शाम के 6 बजे से घड़ी चलेगी या 12 बजे से चलेगी? सबको पता है 12 बजे से ही चलेगी। 6 घंटे ये ऑफ थी, इसलिए कि बैटरी निकाल ली गई थी, सेल निकाल लिया गया था। मेरे अजीजों, ये मिसाल तुम्हारे जहनों को करीब करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। जिस तरह घड़ी की सुइयां बैटरी निकालने से रुक जाती है, जब मेराज की शब थी, मौला रब्बे जुल जलाल ने जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कायनात से बुलंद कर दिया था और इस कायनात से अपने दरबार में बुलाया था, तो जो निजाम यहां था वो जहां का था वहीं रुक गया। इसलिए कि हमारा यकीन तो ये है, ये कायनात पूरी रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा के सदक़े में बनाई है, मेरे आका के सदक़े में बनाई है। इसकी सुइयां जो कायनात की चलती हैं वो मुस्तफा की शान से चलती हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से चलती हैं। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की शब न इस रुए जमीन पर थे और न इस कायनात में थे, वो आसमानों पर गए। अब हमें पता नहीं 500 साल के लिए गए थे या 5000 साल के लिए गए थे या 5 लाख साल के लिए गए थे, हमें पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब वो जाने कायनात वापस तशरीफ लाए तो इस कायनात का टाइम और वक्त जहां रुका था वापस वहीं से चलने लग गया। इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। बात समझ में आ रही है? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। पहली बात ये समझ जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहे कायनात हैं, असले कायनात हैं, मकसदे कायनात हैं। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो फिर कायनात का कोई जर्रा भी नहीं। इकबाल ने क्या बेहतर अंदाज में इसको यूं अपने अशार में तरतीब देते हुए कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, मौज में बहर की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। वो मेरे मुस्तफा का नाम ही तो है जो इस कायनात को चला रहा है। इसीलिए आला हज़रत ने भी फरमाया है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हम आगे कहते हैं सफीउल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है नजीयुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। एक बात याद रखना, ब मुस्तफा बरसा खैश के दी हमावोस, अगर बउन रसीदी तमाम बुलहबी, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर वहां तक नहीं पहुंच सका तो पूरी जिंदगी अबू लहब की तरह है। हुजूर पाक असले कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात। अब मेरे आका की एक शान और भी बयान कर दूं। मेरे अजीजों, हमारा ये जलसा, यहां जो रौनक लगी हुई है, इसी के चलते हुए, इसी को मिसाल में रखते हुए अर्ज करता हूं। आप महसूस करते हैं कि यहां पर दुनिया का एक दस्तूर है, ये स्टेज आपने सजाया, सुबह से हो सकता है सजा रहे होंगे, वॉलंटियर यहां पर तरतीब दे रहे होंगे, यहां पर बहुत सारे कारकुनान मेहनत कर रहे होंगे, फूल लगाए, स्टेज सजाए। और किसके लिए सजाए? एक मुकर्रिर आएगा, एक खतीब आएगा, ये उलमा आएंगे। इसीलिए चले मैं दूसरी मिसाल देता हूं। आपके यहाँ शादियां होती हैं, शादी में भी मंडप सजाया जाता है या हॉल में होती है आपके यहाँ, हॉल में बहुत सारी चीजें सजाई जाती हैं, कुर्सी रखी गई, फूल लगाए गए, हर तरह से ज़ेबो ज़ीनत किया। किसके लिए? मियाँ दूल्हे के लिए ना। बाराती पहले आ जाते हैं कुछ इस्तकबाल करने के लिए, फिर दूल्हा आता है, कुर्सी पर बैठता है, निकाह हो गया और खाना खा लिया लोगों ने, और उसके बाद रुखसती हो गई। दूल्हा अगर चला गया तो मुझे अब जो बात कहनी है वो ये है, ए मुसलमानों सच बताओ, दूल्हा चला जाए महफिल से तो क्या वो सजावट वैसी रहेगी? क्या वो हाल में ज़ेबो ज़ीनत वैसी रहेगी? सब निकाल दिया जाए। अरे शाम होने से पहले पहले हाल बेहाल भी होता है,
बहुत सारी जगहों से सारी जीनत और सारी ज़ेब व आराइश खत्म कर दी जाती। उनसे पूछे मियाँ क्यों नहीं रखते? कहा अब दूल्हा गया तो फिर अब ये सब चीजों की क्या जरूरत, ये दूल्हे के लिए सजाई गई थी। दूल्हा आया, निकाह भी हुआ और चला गया, अब हम ये सारी लाइटिंग निकाल देते हैं, फूल निकाल देते हैं, कुर्सी हटा देते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। दूल्हा आने से पहले सजाया गया और दूल्हे के जाने के बाद हटाया गया, यही चलता है। अब मैं आपको बताऊं, हदीस पाक की रोशनी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी कायनात में पहले जमीन को बिछाया, फिर आसमान का छत ताना और दरख्तों के कुमकुमे लगाए गए, सितारों से जगमगाया गया, चांद और सूरज को लाइटिंग में भेजा गया और 1,24,000 नबियों को बराती बनाकर भेजा गया। ये सारा निजाम मेरे मुस्तफ़ा की आमद के लिए हो रहा था। ये सारा निजाम रसूल पाक की आमद के लिए चल रहा था। इसीलिए तो हजरत इदरीस भी कहते हैं मैं असल नहीं, मेरे बाद एक नबी आने वाले। मूसा भी कहते हैं मैं असल नहीं, मेरे बाद एक नबी आने वाले। ईसा भी कहते हैं मैं असल नहीं, मेरे बाद नबी आने वाले हैं। सारे लोगों ने कहा कि मुस्तफ़ा आने वाले हैं। वो सब बराती के तौर पर हुजूर पाक की आमद का इंतजार करते हुए अंबिया आए। मेरे अजीजों, ये जमीन का फर्श और बिछोना, या आसमान का छत और ये दरख्तों के कुमकुमे, ये समंदरों का लहलहाना, ये खूबसूरतियां, तारों का जगमगाना, चांद और सूरज का झिलमिलाना, ये सारी चीजें मेरे मुस्तफा की आमद के लिए थी। अब बात मैं आपको बता रहा हूं, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया लौलाका लमा खलक़तु दुनिया वला फलाका वला अर्दी। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना ना होता, न मैं आसमानों को बनाता, न जमीनों को बनाता और ना ही दुनिया को बनाता। ये सब चीजें ऐ रसूल आपके लिए बनाई गई। अब हम समझते हैं मेरे मुस्तफा के लिए बनाई गई। जमीन बिछाई गई, आसमान का छत ताना गया, ये सब सितारे झिलमिला रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, वो दूल्हा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन जलवा अफरोज हुआ और मदीना तैयबा में रूपोश भी हुआ। 63 साल की जिंदगी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी तौर पर तमाम इंसानों के सामने गुजारी और उसके बाद जब मेरे आका तशरीफ ले गए, अब मैं ये कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, दुनिया का तो दस्तूर ये है कि दूल्हा चला जाए तो कुर्सी हटा दी जाती है, दूल्हा चला जाए तो ज़ेबो जीनत खत्म कर दी जाती है और लाइटिंग हटा दी जाती है, फूल निकाल लिए जाते हैं। मैं ये पूछता हूं, अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए कायनात सजाई गई थी, जमीन और आसमान सजाए गए थे, सितारे और चांद और सूरज बिछाए गए थे, तो अब मैं ये पूछता हूं, मुस्तफा अगर चले गए तो ये सब चीजें अभी बाकी क्यों है? ये जमीन अभी क्यों है? ये आसमान क्यों है? ये तारे अभी क्यों चमक रहे हैं? ये चांद क्यों झिलमिला रहा है? ये सूरज अभी क्यों चमक रहा है? ये सारी चीजें ऐ मुसलमानों, इन अशिया से अगर तुम पूछोगे तो ये बबांगे दुहल कहेंगे, सूरज भी कहेगा, चांद भी कहेगा, तारे भी कहेंगे, जमीन और आसमान भी कहेंगे। ऐ अकल के अंधे, जरा आंख खोल और देख, दूल्हा गया नहीं, रूपोश हुआ है, सल्तनत उसकी महशर तक कायम है। वो दूल्हा सिर्फ रूपोश हुआ है, यही तो सुन्नियों का अकीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, ये है शान मुस्तफ़ा। आप, ये हमारा मुस्कुराना, ये हमारा चहचहाना, ये सब मुस्तफ़ा की बदौलत है, उन्हीं की बरकत है। ये ज़मीन जो बाकी है मेरे मुस्तफ़ा के नाम से बाकी है। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, बाज़ लोगों को दलील के तौर पर नहीं बल्कि उनको समझाने के लिए, बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम बादशाह आज़म कहते हैं। आज भी अगर हमारे दिलों पर किसी की हुकूमत है तो वो सिर्फ सल्तनत मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, हाँ एक बात ये भी, किसी ने, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे हुए थे, तकरीर के दौरान कहा कि मौजूदा सरकार ऐसी है, मौजूदा सरकार, गवर्नमेंट को सरकार कहते हैं, आपने बरजस्ता कहा सरकार का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, यह गवर्नमेंट हो सकती है, सरकार सिर्फ मदीने वाले ताजदार का नाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम सरकार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अजीजान गिरामी, जुमले बदलो, और आज भी अगर हुकूमत हमारे सीनों पर किसी की है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए आप, 14 सदियां बीत गई, हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं पाया और ना ही उनके जमाने में उनके दीदार से मुशर्रफ हुए, लेकिन 14 सदियां गुजरने के बाद भी आज भी बिहम्दिल्लाह हमारे घर के हर बच्चे में यह जज्बा मौजूद है। नाम लेकर के तो देखो बच्चा गर्दन देने को तैयार है। ये मोहब्बत, ये इताअत किसके साथ हो सकती है? बादशाह के साथ हो सकती है, और वो भी ऐसा बादशाह जो सिर्फ सरों पर हुकूमत नहीं करता, दिलों पर हुकूमत करता है। और आला हज़रत ने यही तो कहा था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना,
हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और अदीब लायलपुरी कहता है, शायर हैं, यूं कहते हैं, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद व बुखारा किसी महबूब के रुखसार के दिल पर। एक बादशाह अपनी महबूबा के रुखसार पर तिल, उस पर समरकंद और बुखारा 2 शहर उसने बख्श दिए, इनाम में दे दिए। अब वो शायर कहता है, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद और बुखारा किसी महबूब के रुखसार के तिल पर, मगर ऐ सैयद आली तेरी नामूस तेरी अजमत पर एक नहीं लाखों हैं कुर्बान गए इश्क के हर कूचे व बाजार में, सर अपना हथेली पे लिए करने को है तैयार, सर अपना हथेली पर लिए हैं करने को निसार। अजीजान गिरामी, ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। अगर बादशाहत हो तो ऐसी हो कि रूह पर भी हो, कल्ब पर भी हो। आज मैं शान मुस्तफ़ा के सिलसिले में ये भी बात अर्ज करूं, दुनिया का एक कानून ये भी हमने देखा, आपका शहर तो हेरिटेज कहलाता है, बादशाहों का, राजे महाराजाओं का शहर है, और हो सकता है तारीख में तो पढ़ा होगा, आप तो नहीं देखा हो, बादशाह की कुर्सी लगती है और अगल बगल में वजीर भी होते हैं, वजीरों का भी दरबार हुआ करता है। और जब बादशाह उठ जाता है तो वजीर नहीं बैठते, वजीर भी उठ जाते हैं, ये बेअदबी समझी जाती। बादशाह जब कुर्सी पर है तो उसके पहलू में वजीर होते हैं, और जब तक वजीर बैठे हैं, ये बादशाहों का निजाम होता था कि जब तक वजीर पहलू में बैठे हैं, इस बात की दलील होती कि इसकी बादशाहत कायम है। कोई भी रियाया आए और सवाल करे, और अगर वजीर चले गए तो यह कहा जाता कि नहीं, अब बादशाह छुट्टी पर जा रहे हैं, सल्तनत उठाई जा रही है, कामों काज खत्म किए जा रहे हैं। क्योंकि वजीर जो होते हैं वो इस बात की अलामत होते हैं कि रियाया अपनी हाजतें बयान करने के लिए आ सकती है, सल्तनत का दरवाजा खुला है, इस बात की अलामत होती जब भी वजीर बैठा करते। ये दस्तूर हुआ करता। अब आओ मैं बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 4 वजीर अता किए। कितने? 4 वजीर अता किए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान के मेरे वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं, और जमीन पर मेरे 2 वजीर अबू बकर और उमर हैं। आप सारी हदीसें पढ़ना, हदीस के रावी यही कहते हैं, मुस्तफा आए, अबू बकर और उमर साथ में आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अबू बकर उमर पहलू में थे। यही हदीसों में अक्सर आपको मिलेगा। कोई महफिल ऐसी नहीं मिलती जहां हजरत अबू बकर और हजरत उमर ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर महफिल में हाजिर बाश। मेरे अजीजों, ये हम सुन्नियों का अकीदा भी है, और हमारा ये विजदान कहता है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहंशाह कौनैन हैं, बादशाह आजम हैं। जब मदीने की धरती पर थे तो अबू बकर व उमर रदी अल्लाह अन्हुमा वजीर की तरह आपके साथ साथ रहते। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से कूच फरमा गए, रहलत फरमाए, और वो बुक़ाए नूर जिसमें मेरे आका आज आराम फरमा है, रोज़ा रसूल गुंबद खतरा के नीचे जहां मेरे आका आराम फरमा है, मेरे आका के विसाल के बाद तरतीब तो देखें, हुजूर के पहलू में पहली मर्तबा, हुजूर के बाद अगर कोई दफन होता है तो अबू बकर सिद्दीक दफन होते हैं। चंद सालों के बाद दूसरा अगर कोई दफन होता है तो हजरत उमर दफन होते हैं, और कोई नहीं दफन हुआ। हुजूर की ज़ौजा हजरत आयशा कहती है, मैं दफन होना चाहती थी, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये थी कि हजरत उमर ही वहां दफन हो, और उसके बाद वो दीवार बंद कर दी गई। अब उस हुजरा पाक में मेरे आका आराम फरमा है, और पहलू में अबू बकर व उमर आराम फरमा है। अब बादशाह के अगल बगल वजीर हैं, तो ये इस बात की अलामत होती है कि सल्तनत कायम है और रियाया अपनी हाजतें लेकर आ सकती है। मेरे मुस्तफा का दरबार मदीने में आज भी इस बात की अलामत बना हुआ है। ऐ सुन्नियों, ऐ मुसलमानों, आओ हाजतें लेकर, इसलिए कि बादशाह अब भी कुर्सी शहंशाहत पर बैठा है, और बगल में अबू बकर व उमर वजीर बनकर के आज भी तशरीफ फरमा है।